سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنا کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ہی ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنے کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع اڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدہدہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو الدہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس شخص سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار سے متعین ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ قسم کی کھجوروں کو کھانے کو ترستے ہیں اور خریدنے کا انتظام کرتے ہیں کہ آپ کے باغ کی کھجوریں اتنی لذیذ اور اتنی مزیدار ہوتی ہیں۔ ابو الدہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی صورتحال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل یہ مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدہدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابو الدہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو جود و کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو الدہدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابوالدہدہ ہوتا۔ ابوالدہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی، میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابوالدہدہ کتنے میں بیچا ہے اور یہ سب کچھ کیا؟ ابوالدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابوالدہدہ کی بیوی خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، بیوی نے، ابوالدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ابوالدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابوالدہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابوالدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ابوالدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں توفیق دے کہ آج کل کے مشکل حالات میں، آج کل کے پریشانی والے حالات میں، جب بیماریاں اپنے عروج پر ہیں، جب کرونا جیسی بیماری اپنے عروج پر ہے، تو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے کمانے کے کوئی سارے اسباب ختم ہو چکے ہوں، ان کا سوچنا چاہیے کہ ہم نہیں سوچیں گے، کیونکہ ہم اس نبی کی امت سے ہیں جو ہر کسی کے غم گسار تھے، جو ہر کسی کا ساتھ دیتے تھے۔ آج اگر ہمارے بھائیوں، ساتھیوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اور عطا کی ہے تو ہمیں ضرور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح روحانی بیماری، جس طرح کرونا ایک بیماری ہے، کرونا کی بیماری سے متعلقہ میں نے بڑوں کی، بزرگوں کی اجازت سے ایک خاص عمل جو ہے ان سے پوچھا ہے، اور وہ کرونا کی بیماری کا ایک خاص عمل ہے جو لوگ اگر اس کو استعمال کریں گے یا کسی کو وہ ویڈیو شیئر کر دیں گے، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اس فی سبیل اللہ ویڈیو ہے، لوگوں کے بھلے کی ویڈیو ہے، اور میں نے اس کا رزلٹ جو ہے وہ 100% کافی حد تک بہتر پایا ہے، اور کافی نتائج مجھے اس میں سے بہتری کے ملے ہوئے ہیں۔ میں آج جو ہے اناؤنس کر رہا ہوں، انشاءاللہ 1-2 دن میں کرونا کے علاج کی جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ آپ لوگ کائنڈلی لوگوں کو شیئر کریں کہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک اس بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور آزمودہ جو ہے وہ علاج ہے، انشاءاللہ آپ بھی اس سے بہتری اور شفا پائیں گے۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے خاص کر آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کی جائیں جن سے نہ صرف دنیاوی اور اخروی زندگی کا جو ہے وہ اسباب پیدا ہوں، بلکہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں مددگار ثابت ہوں۔ دنیا کی زندگی ہر کوئی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، عارضی زندگی ہے۔ اس زندگی نے ختم ہونا ہے اور بالآخر ضرور ختم ہونا ہے، اور ہم کو مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کرنا ہے جو بھی ہم اس دنیا میں عمل کرتے رہے۔ میں اپنی قبر کا خود مالک ہوں، آپ بھی اپنی قبر کے خود مالک ہیں۔ اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کا حق ماریں گے، جو کچھ بھی کریں گے، آپ کو ہی آخرکار اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی اس دن کے لیے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اس دن کے لیے جب ہر کوئی نفسا نفسی 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 پکار رہا ہوگا۔ اس دن کی تیاری ہر کسی کو آخرکار کرنا ہی پڑے گی، اور کوشش کیجیے آپ کی زبان سے، آپ کے دل سے کسی کا جو ہے وہ دل نہ دکھے، لوگ راضی ہو جائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم جو کچھ جہاں بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہمیں آخرکار اپنے اعمال کو سیدھا کرنا ہی پڑے گا۔ آفتیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ہم آفتوں میں بھی اپنے رب کریم کو بھول جاتے ہیں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کروا رہا ہوتا ہے کہ اب بھی لوٹ آؤ میری طرف، میں جو ہوں، یعنی اللہ کہتا ہے اپنے بندے کو، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں، یہ آزمائشیں نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں
कि तुम मेरी तरफ लौट आओ और मुझे उस तरीके से पुकारो जिस तरीके से मुझे पुकारने का हक है, उस तरीके से मेरी इबादत करो कि जिस तरीके से मेरी इबादत करने का हक है। ये जो चीज़ें हैं, ये लेन देन वाले मामलात कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। खालिस इबादत अपने रब की मोहब्बत में की जाए, अल्लाह के साथ अखलास के साथ इबादत की जाए कि ये जो दुनियावी चीज़ें हैं या उखरवी चीज़ें हैं, ये तो इनाम में मिल ही जाएंगी। मगर जिस रब ने पैदा किया, जिस रब ने जो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है, क्या वो इस लायक नहीं कि उससे इतना ही प्यार किया जाए जितना वो रब खुद बंदे से प्यार करता है। एरीज की बात करें और बुर्ज हमल वालों की बात करें कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इनके मामला कैसे रहेंगे और चीज़ें किस तरह की होंगी। बेसिकली अब की जो हम इंफॉर्मेशन है उनको 3-4 तरीके से हम तब्दील करना चाह रहे थे और इसीलिए कुछ थोड़ा सा गैप आ गया। मिसाल के तौर पे अगर हम आपको इस वीक की प्रिडिक्शन की जो सिचुएशन के बारे में बताएं तो हम सबसे पहले आपको जनरल रीडिंग बताएंगे आपके स्टार्स की, उसके बाद हम आपके बिजनेस और कैरियर की बात बताएंगे और उसके बाद मैरिड और फिर ट्रैवलिंग की बात करेंगे। उसमें हम आपको जेमस्टोन भी बता सकते हैं, पढ़ने के लिए वजीफ़ा भी बताएंगे इंशाल्लाह। मगर जिस तरह एरीज़ की बात करें तो एरीज़ के लिए इस पूरे वीक में जनरल रीडिंग यानी कि ओवरऑल क्या सिचुएशन रहेगी। इस पूरे वीक में जो आने वाला हफ्ता है, एरीज वाले मार्च 21 से अप्रैल 20 तक जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका हफ्ता किस तरह जाएगा। हफ्ते का आगाज़ आप लोगों का जो पीर से होगा, आगाज़ जो है इंतहाई अच्छे तरीके से और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका शुरू होगा और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके कामों में, आपकी चीज़ों में भी अयां होगी। और दरमियान में थोड़ी सी आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं 1-2 दिन के बाद, मगर आगे जाके आपके मामलात इंतहाई बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसी तरह आपका थोड़ा सा जो हेल्थ का इशू है जनरल रीडिंग में वो आपको प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकता है, इसलिए फलों और जूसेस का इस्तेमाल और रेड कलर के जूसेस का इस्तेमाल आपकी सेहत को ठीक कर सकता है। सेहत में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो आप अपनी अच्छी खुराक से ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी सेहत बेहतरी की तरफ चली जाए। अगर हम आप लोगों की बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में आप लोगों ने थोड़ा सा मुहतात होकर देखना है अपने कामों को, चाहे आपका शोबा है जात, आपकी जो है वो बिज़नेस हो, चाहे आपका जो है वो आप जहाँ कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं काम कर रहे हो, तो चीटिंग थोड़ी सी हो सकती है, उसको आपने मुहतात तरीके से गुजारना है कि कोई चीटिंग ना हो। वैसे तो आपके काम में काफ़ी बेहतरी की तब्दीलियाँ आएंगी, काफ़ी बेहतर होगा और खुशी महसूस करेंगे काम करते वक्त और पैसा भी आ सकता है और कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि आपकी तब्दीली में कुछ थोड़ी सी जज्बातियत यानी थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। इसलिए अपने कामों को इंतहाई तहम्मुल के साथ और अल्लाह के साथ जो है भरोसे के साथ आपने करना है और परेशान नहीं होना। इब्तदा में यानी कि हफ्ते के इब्तदा में ही जो वीकली हॉरोस्कोप है उसकी इब्तदा में थोड़ा सा मुहतात रहना है, दरमियान में खुशी का माहौल है और एंड में जाके तबीयत में जो जज्बातियत है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। और अगर हम आप लोगों की मैरिड लाइफ की बात करें एरीज वालों की, तो मैरिड लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में खुशी है, कई चीज़ें ठीक होंगी। आप अपनी घरेलू ज़िंदगी या आपकी जो आपके लव अफेयर से रिलेटेड ज़िंदगी है उसमें काफ़ी रवाबत और काफ़ी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। कम्युनिकेशन, टेलीफोन कॉल्स का आना जाना, राब्ते होना, कहीं आप जा सकते हैं, कोई प्लान बना सकते हैं और कोई ख़ास अल्लाह की मदद भी आपको घरेलू ज़िंदगी में मिल सकती है जिसका आप अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको ट्रैवलिंग की बात करें, ट्रैवल आप ज़रूर कर सकते हैं मगर मुहतात रहिएगा। इस वक्त ट्रैवल करना जो है वो आपके हक में नहीं है, मगर चांसेस हैं आपको ट्रैवलिंग की खबर भी आएगी। अगर कामों के सिलसिले में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मगर अगर आप अपने रिलेशंस के सिलसिले में कोई अपने रिलेशन को मिलने के लिए या इस तरह के मामलात में अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप एहतियात कर सकते हैं। रेड कलर का इस्तेमाल इस वीक में आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, गोश्त का सदका हो सकता है और ये मंगल वाले दिन हो सकता है। मगर आपके लिए जो वजीफ़ा आ रहा है
वो है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 110 मरतबा। मगर बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम वज़ीफ़ा पढ़ते हैं, उनके कामों में मदद नहीं आती। जिन लोगों के ऊपर जादू या जिन्नात का असर होता है, उन लोगों के लिए ये जो मैं पढ़ाई या वज़ीफ़ा बताता हूँ, उन लोगों के लिए नहीं होता। जिन लोगों के ऊपर असरात नहीं होते, वो लोग ये वज़ीफ़ा करके अपनी ज़िंदगी में भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इशा के बाद 110 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पानी के ऊपर दम करके पी सकते हैं, जिससे आपकी तबीयत में अफाका हो सकता है, सेहत के इश्यूज़ हल हो सकते हैं और कामों में भी अल्लाह की मदद आ सकती है। वुड फॉर टॉरस और ज़ोहरा वालों की बात करें और हफ्ता और जुमा के दिन आप लोगों के लिए लकी फेवरेट रहेगा 4 नंबर आप लोगों का मुवाफिक और आपका आंसर मट्टी। अगर आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें इस वीक में, जनरल रीडिंग में आप लोगों के मामलात जो है वो आपके रिलेशन से मुतल्लिका रहेंगे, आपके घर वालों के मामलात से मुतल्लिका रहेंगे, आपके लव अफेयर से मुतल्लिका रहेंगे, आपकी फैमिली से रिलेटेड रहेंगे। मगर आपने इस पूरे वीक में गुस्सा नहीं करना, क्योंकि थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा, ताकि आपके मामलात में बेहतरी रहे। इसी तरह हेल्थ के भी मामलात में आपने कोशिश करनी है, एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करनी है, और एजुकेशन के भी मामलात में आपने जज्बातियत नहीं करनी और तहम्मुल के साथ अपने सिलेबस को स्टूडेंट्स ने ज़रूर सेट करना है ताकि अपनी चीज़ें ठीक करें। मगर हम सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस की तरफ और कैरियर की तरफ। बिज़नेस और कैरियर में आप लोगों का जो कारोबारी मामलात हैं, या आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, या आप कोई पार्ट टाइम काम करें, तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन आ सकती है कामों के सिलसिले में। यानी कि कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसी ऑप्शन आ सकती है कि आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, मगर कोई आपके पास ऑप्शन है जिसके ऊपर आप सोच विचार करेंगे कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए बेहतरीन हल है कि आप इस्तिखारा कीजिएगा, अपने बुज़ुर्गों से मशवरा कीजिएगा, किसी सीनियर से मशवरा कीजिएगा, अपनी फैमिली रिलेटेड लोगों से मशवरा करके इस चीज़ को अच्छे अंदाज के साथ हल करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर हम आप लोगों की मैरिड लाइफ की बात करें, तो मैरिड लाइफ में इश्यूज मौजूद हैं और आ चुके हैं काफ़ी इश्यूज आप लोगों के ज़ोहरा वालों के लिए। लीगल डॉक्यूमेंटेशन आ सकती है, जिनके मामलात ख़राब हैं उनका निज़ाम काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है और काफ़ी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं। इसलिए एहतियात के साथ, क्योंकि कोई जिनके तलाक़ के मामलात हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, या जिनके रिलेशन चल रहे हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। आप दो राय में खड़े हो सकते हैं, यानी कि आप कोशिश करेंगे आपने अब कौन सा फ़ैसला करना है। आप फ़ैसले वाले मुराहल में होंगे टॉरस वाले, इसलिए आप जो भी फ़ैसला करें सोच समझ कर अक्ल दानिश के साथ ज़रूर करिएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी आपके मामलात में ज़्यादा मामून साबित हो, शरीके हयात आपका आपके साथ हो, या जिनके साथ आपकी रिलेशंस हैं वो भी आपके मामलात में आपके मामून साबित हो। इसलिए आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और अगर आपकी ट्रैवलिंग की बात करें, ट्रैवलिंग तो आप ज़रूर करेंगे, ट्रैवलिंग आ रही है, और कोई आपको आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री से भी ऑप्शन मिल सकती है कि आप जाके अपने मामलात को तय कर सकते हैं। मगर इसमें आपने अपने कामों को ज़रूर सामने रखना है, नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि काम मौजूद हैं और उन कामों को नज़रअंदाज जो है किया जाना आपके मामलात को ख़राबी की तरफ लेके जा सकता है। पढ़ने के लिए आपके लिए या अल्लाह या रहमान है, या अल्लाह या रहमान आप 221 मरतबा पढ़ सकते हैं। अल्लाह की तरफ ध्यान करके अपने कामों के लिए ज़रूर पढ़िएगा। और ये पढ़ाई उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कोई रूहानी मसला नहीं है, कोई जिन जादू का असर नहीं है, तो फिर ये पढ़ाई और ज़्यादा फ़ायदामंद होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अगर आप सदका भी करना चाहते हैं तो आपको और चीज़ बता देता हूँ, सैटरडे वाले दिन आप येलो कलर की किसी भी चीज़ का सदका कर सकते हैं और अल्लाह की तरफ ध्यान करके करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपका हामी नासर। अपना ख्याल रखिए। जेमिनी वालों की बात करें और बुर्ज वालों की बात करें, आप लोगों का अतारत जो है स्टार बनता है, और आप लोगों का जो इस वीक में दिन आ रहा है वो बुध का दिन है। बुध वाले दिन आप कोई चीज़ों को देख सकते हैं, कोई
کاموں کا آغاز کر سکتے ہیں، اور خاص کر آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں جو جنرل ریڈنگ آ رہی ہے جیمنائی والوں کے لیے، آپ لوگوں کا کافی جو معاملہ اچھے طریقے سے چل رہا تھا وہ کچھ کافی حد تک ڈسٹرب تھا. سٹارز کی پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ چیزیں کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھیں، مگر آپ کے جو معاملات ہیں، خاص کر اس میں آپ کے والدین کی دعائیں، آپ کے بڑوں کی دعائیں اور بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی چیزیں کچھ سٹیبل ہونا شروع ہوئی ہیں، معاملات میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے. آگے جا کے بھی آپ کوئی نئے کام کا آغاز کر سکتے ہیں، کوئی چیزیں کافی حد تک آپ کے کنٹرول ہو جائیں گی. اسی طرح آپ ہیلتھ وائز جو اپنی جو ہے توجہ نہیں لے پا رہے تھے، اس میں بھی آپ اچھے فزیشین اور اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، مگر آپ کو کنسلٹنسی جو ہے وہ لینی پڑے گی. اور اسی طرح آپ اگر جو ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہیں، جنرل ریڈنگ میں جو طلباء طالبات ایجوکیشن کے شعبہ کے ساتھ منسلک ہیں، وہ بھی اچھی کاؤنسلنگ اور رغبت کے ساتھ اپنی تعلیمی معاملات کو ضرور صحیح کریں اور آگے بڑھائیں. اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو سٹارز کی پوزیشن کے مطابق آپ اپنے بزنس اور کیریئر میں نئی اپرچونٹیز کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کاروباری معاملات ہوں، چاہے آپ جاب کر رہے ہوں، چاہے آپ کچھ بھی اپنے رزق کے متعلقہ معاملات میں کام کر رہے ہیں، آپ کو آپشن مل سکتی ہے، اور یہ جو آپشن ہے آپ کے کاموں میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اس میں کوئی خاص جو ہے وہ بڑے لیول سے مدد آ سکتی ہے، بزرگوں سے بھی مدد آ سکتی ہے، اور آپ کے ریلیشن سے بھی مدد آ سکتی ہے، جس سے آپ کی فائنینشیل کاروباری معاملات کافی سٹرونگ ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کی جابس ہیں ان کو ترقی مل سکتی ہے، اور جو رزق کے معاملات میں پریشان ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، کیونکہ پیسے کا ایشو تھوڑا سا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. شاید یہ آگے مزید بہتری کی طرف چلا جائے. میرڈ اور ریلیشن لائف میں آپ لوگ اپنے والدین کے مشوروں کے ساتھ چلتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ چینجنگ چاہتے ہیں، چاہے وہ ریلیشنز ہوں، چاہے آپ کے لو افیئرز ہوں، مگر آپ کا دل ٹوٹ جائے گا کسی بات سے. کوئی دل ٹوٹ جا سکتا ہے. دل کا ٹوٹنا جو ہے اس کو تو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے. آپ نے اپنی بات چیت سے، اپنی سوچ اور فہم کا استعمال کر کے کہ دل نہ ٹوٹے. دل کا ٹوٹنا آپ کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے یہاں احتیاط کیجیے گا. اگر دل ٹوٹ بھی جائے تو صبر و شکر کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ آگے شاید آپ کے سٹارٹ کی پوزیشن مزید بہتری کی طرف جا سکتی ہے. کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے یا کوئی آپ ایسا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہوں جس میں آپ کا ساتھی شاید آپ کا ساتھ نہ دو، اس لیے آپ مایوس ہو سکتے ہیں. دل ٹوٹنا کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی خاص ناراضگی ہو جائے، مایوسی آ سکتی ہے. اس کو آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ 121 مرتبہ اپنے ریلیشنز کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو سکتا ہے. کوئی اتنی مشکل والی بات نہیں ہے جو آپ کو جو ہے پرابلم میں لے جائے. ٹریولنگ آپ کے پاس آپشن موجود ہے، کر سکتے ہیں، مگر نہ کیجیے گا. ابھی ٹریولنگ بہتر آ نہیں رہی، کیونکہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ جس مقصد کے لیے یا رزق کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ جو ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں خدشات ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ڈر ہے، آپ پریشان ہیں کہ جو آپ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ نتائج شاید نہ ملیں جو دورس نتائج آپ چاہتے ہیں، اس میں کچھ پرابلم آ سکتی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 121 مرتبہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اس پورے ویک میں. اور اگر آپ لوگ صدقہ دینا چاہتے ہیں، وہی بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن آپ صدقہ دے سکتے ہیں. بلیک کلر کی کسی چیز کا صدقہ دیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، پورے اعتماد طریقے سے اس ویک کو گزاریں. اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیں. آپ کا لوگوں کا خیال رکھنا شاید آپ کے سٹارز کی پوزیشن اور بھی آپ کی بہتری کر دے، بہتری کی طرف لے جائے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. نہ ہی سٹارز میں وہ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو نہ سٹارز میں وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور نہ ہی کہیں اور پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے ہر معاملے میں اپنے رب کو ساتھ لے کے چلیے گا. رب کے بغیر کچھ نہیں، رب ہے تو سب ہے. برج سرطان کی بات کریں، کینسر والوں کی بات کریں، آپ لوگوں کا عنصر پانی، واٹر سے ریلیٹڈ لوگ، اور آپ لوگوں کا اس ویک میں جو چیزیں آپ کی جنرل ریڈنگ میں آ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ آپ فالو اپ کیجئے گا. خاص کر جو ہے آپ کے جو صحت کے معاملات اور تھوڑے سے آپ کے جو ہے وہ میرڈ لائف جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے ضرور ڈسکس کرنا ہے، دیکھنا ہے. جنرل ریڈنگ کی اگر بات کرتے ہیں
वो सरतान वालों की। जिस तरह आपका आंसर पानी है और आपके लिए खुशबख्ती का जो अदद है वो 2 आ रहा है, और आप लोगों का जो इस वीक में जेमस्टोन है वो ज़ुमुर्द, वो आप पहन सकते हैं। पुखराज भी आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है, मगर इन चीज़ों में फ़ायदा तो अल्लाह ताला ने बेसिकली रखा होता है, अल्लाह के अलावा तो किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं। मगर इन चीज़ों में ये अल्लाह की ही बनाई हुई चीज़ें हैं जिनमें से हम फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कलर्स में फ़ायदा भी अल्लाह ने रखा है, पत्थरों में भी रखा है और चीज़ों में भी रखा है। देने वाली ज़ात क्योंकि अल्लाह की, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं होता। बात कर रहे थे आप लोगों की जनरल रीडिंग के। जनरल रीडिंग में कई चीज़ें जो आप करना चाह रहे थे उसमें गैप था, ठहराव था, हो नहीं पा रही थी। चीज़ें काफ़ी मौजूद हैं आपके पास, काफ़ी मामलात हैं। चीज़ों से मुराद ये है कि आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ा बात हो, आपकी मैरिड लाइफ से मुतल्लिक़ा बात हो, या आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा हो, या आपके जॉब से रिलेटेड मामलात हो। इनमें काफ़ी जो है वो गैप मौजूद है, मगर आपको इस गैप को जो ठीक करना है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, यानी कि आपने टू द पॉइंट रहना है। टू द पॉइंट रह के जो भी आप काम करेंगे या जो बात करेंगे उससे आपको मुआवनत और फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह हेल्थ वाइज भी आप लोग अच्छी खुराक हासिल कर सकते हैं, मगर जो चीज़ें आपने अपनी खुराक और सेहत को ठीक करने के लिए करनी है उनको सेलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर पाबंदी के साथ अमल कीजिए। और इसी तरह एजुकेशन में भी जो तलबा तालिबात हासिल कर रहे हैं अपनी तालीमी मामलात, उनको भी सीरियस होकर अपने तालीमी मामलात का सोचना पड़ेगा ताकि चीज़ें उनके कंट्रोल हों। अब हम चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। तो बिज़नेस और कैरियर में आपके पास ऑप्शन अल्लाह की तरफ से आ जाएगी। आप काम कर सकते हैं, आपको आपकी जॉब से रिलेटेड या आपके कामों से मुतल्लिक, या जहाँ कहीं आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में आपकी मदद मौजूद होगी। मगर मसला इशू ये आएगा कि आपको अपने मामलात को बेहतर करने के लिए पैसा दरकार है, मज़ीद रकम दरकार है, कोई नए प्रोजेक्ट करने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जो मदद है उसको आपने ठीक करना है। कैसे करना है अल्लाह ताला कर ही देंगे, मगर ये जो आपका बिज़नेस वाला मामला है ये आपको बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। और आप जो अपनी घरेलू लाइफ में सुकून चाहते थे, पैसे की वजह से कई चीज़ें, कई प्रोजेक्ट, कई मामलात नहीं हो पा रहे थे, जिनके घर वगैरह रुके हुए थे, वो अपने कामों को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, अल्लाह की मदद आ सकती है। मैरिड लाइफ में ख़ास बुज़ुर्गों की बड़ी नज़र है, आपके पेरेंट्स की बड़ी नज़र है, और ख़ासकर वालिद की नज़र है। और मैरिड और रिलेशन लाइफ में उनकी मर्ज़ी से ही आपको मामला तय करना चाहिए। अगर आप अपने रिलेशन में भी अपने बड़ों की मर्ज़ी को साथ लेके चलेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, मगर थोड़ी सी मायूसी आएगी दरमियान में। ऐसा नहीं कि आप मायूस ना हो, परेशान होंगे, थोड़ा सा स्टक होंगे कि हालात शायद किस तरफ जा रहे हैं, शायद आपके हक़ में जा रहे हैं, नहीं जा रहे। मगर स्टार्स की पोजीशन तो यही बताती है कि ये मामला जो अगर आप अपने वालिदैन के मशवरे के साथ करेंगे आपको फ़ायदा देंगे, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और इसमें एनर्जी अल्लाह की तरफ से आएगी जिससे आप काफ़ी हद तक सुकून महसूस करते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है, और अच्छी खासी ट्रैवलिंग की ऑप्शन मौजूद है। कामों के सिलसिले में ही ट्रैवलिंग कीजिएगा, और अगर जो आप ट्रैवलिंग कीजिएगा उसमें देखिएगा कि जो आपने अपने काम करने हैं, या काफ़ी काम मौजूद हैं जिनके ऊपर आपने शायद अभी प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं किया हुआ, आपकी प्लानिंग अभी नहीं है। तो अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो प्लानिंग कर लीजिएगा, ताकि जिस प्लानिंग के तहत आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं वो ट्रैवलिंग आपको आगे लेके जाए, आपके मामलात में मावन साबित हो। और इस वीक में आप लोगों के लिए जो सदका है वो है आटे की, जो है वो गोलियां बना के ना, आटे की छोटी छोटी, वो पानी में बहाना है। पानी में जब आप बहाते हैं सैटरडे वाले दिन तो आपका वो सदका हो जाता है। या एक और तरीका भी हो सकता है जिसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, पानी लेके उसमें जो घर में बची हुई रोटियां होती हैं उसके पीसेस करके वो डाल के कोई छत पे डाली जा सकती है, जानवरों को डाली जा सकती है सदके के तौर पे। कि जानवर या वो परिंदे हैं, शायद गर्मियों का भी मौसम चल रहा है कई इलाकों में, तो वो परिंदे पानी भी पी सकते हैं, और वो खाना उनके लिए अगर मुहैया हो जाए तो उससे फ़ायदा हो सकता है। मगर आप लोग अगर पढ़ना चाहें, अपनी वजीफ़ा जो करना चाहें, वजीफ़े के लिए आप लोग सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बद असरात आपके स्टार्स पे आए हुए हैं, यानी कि जो पहले सिचुएशन थी उसमें से आप निकल रहे हैं, यानी कि आपके स्टार्स की पोजीशन बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर आप इस पढ़ाई को रोज़ाना इशा के बाद पानी के ऊपर दम भर के कर लेंगे, उससे भी काफ़ी हद तक
आपको मदद मिलेगी। मगर बात वही जो मैं आपको पहले बार बार कहता हूँ कि पढ़ाई का असर उन लोगों के ऊपर ज़्यादा होता है जिनके ऊपर कोई बद असरात नहीं होते। स्टार्स के ऊपर जिन जादू का असर नहीं होता, देखें जिन जादू का असर भी इवल आइस का भी ऑलरेडी मौजूद होता है। हमारे स्टार्स की पोजीशन बेहतर भी हो, मगर जब ये चीज़ें मौजूद हों, उसका इलाज ना हुआ हो, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसलिए हमें वो दूरअसर नताइज नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिकों में एक आशिक ज़ंख़ा कोयल भी था। गांव में उसका कच्चा घर था। आपकी याद में गुम रहता था और कभी कभी पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने और गाने लगता था। उसकी जादू भरी आवाज़ को मशहूर कर देती थी। सुरीली आवाज़ की वजह से लोग उसे कोयल पुकारते थे। एक मर्तबा एक पीर साहब अपने बहुत सारे मरीदों के साथ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी के लिए जा रहे थे। पीर साहब की सवारी गांव से गुजरी तो एक कच्चे मकान से गाने की आवाज़ आई। मकान के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था और सहन में कोयल रक्से ताउस में महव था। गाने में इतना सहर था कि पीर साहब सहन में जाकर गाना सुनने लगे। कुछ देर के बाद ख्याल आया कि गाना सुनना नाजायज़ है। उनकी पेशानी शिकन आलूद हो गई और वापस होने लगे तो कोयल उनके करीब आया और बहुत अदब से अर्ज़ किया, एह मियाँ, मुझ गुनाहगारी की ऐसी किस्मत कहाँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं। पीर साहब ने गुस्से से कहा, खामोश, हम महबूब इलाही की खिदमत में हाज़िरी देने जा रहे हैं। यहाँ गाने की आवाज़ सुनकर हम देखने के लिए रुक गए कि कौन गा रहा है। हज़रत सूफ़ी मुबारक अली ऊस साबरी रहमतुल्लाह अलैह पीर साहब ने सोचा कि कुछ दिए बगैर चले जाना वज़ादारी के ख़िलाफ़ है। चनाचे उन्होंने 1 रुपये का सिक्का निकाल कर कोयल की तरफ बढ़ा दिया। कोयल ने रुपया लेकर दोबारा पीर साहब की तरफ बढ़ा दिया और कहा, मियाँ जी, ये 1 रुपया ख्वाजा महबूब इलाही की नज़र कर देना। मज़ार शरीफ पर जाकर कहना तुम्हारी कोयल ने नजराना भेजा है। मज़ार शरीफ से हाथ बाहर आए तो नजराना देना, वरना कहीं और खर्च कर देना। पीर साहब को रुपया लेने में हिचकिचाहट हुई। कोयल ने कहा, मियाँ जी परेशान ना हो, ये रुपया आपकी कमाई है, ले लें, मुझ नखट्टी के पास क्या रखा है। पीर साहब ने रुपया रख लिया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी के बाद उन्हें कोयल के नजराने का ख्याल आया। पहले शशोपंज में रहे कि नजराना पेश करें या ना करें, लेकिन फिर रुपया निकाल कर कहा, हजरत ये कोयल का नजराना है। उसी वक्त मज़ार में से हाथ बाहर निकला। पीर साहब ने रुपया हथेली पर रख दिया, मुट्ठी बंद हुई और जिस तरह कब्र से बाहर आया था उसी तरह कब्र के अंदर गायब हो गया। ये मंजर देखकर पीर साहब पर इस तरह तारी हो गया और बेतहाशा रोने लगे। हज़रत महबूब इलाही की नज़रों में कोयल का मकाम देखकर वो सख्त नादमो पेशमा हुए। इसी कैफियत में थे कि उन पर गनूदगी तारी हो गई। उन्होंने देखा कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, ख्वाजा गरीब नवाज और सुल्तानुल हिंद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती सफ़ेद चांदनी पर बैठे हुए हैं और दरमियान में कोयल रक्स करता हुआ नगमा सरा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने खुश होकर हज़रत गरीब नवाज से फरमाया, हजूर आपने हमारी कोयल को देखा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए और खुशनुदी का इजहार किया। फिर पीर साहब की आंख खुल गई। ज़ाहिरबीनी का खौल उन पर से उतर चुका था। वो फौरन उठे और गिरते पड़ते कोयल के घर पहुंचे, अपनी दस्तार फेंक दी और कोयल के पांव पकड़ लिए। कोयल ने पैर खींचते हुए कहा, ऐ मियाँ जी, क्या करते हो? मुझ गंदगी से क्यों अपने हाथ नापाक करते हो? कोयल के बहुत कहने सुनने के बावजूद भी पीर साहब ने उसके पैर ना छोड़े। कोयल के पूछने पर उन्होंने सारा वाकया बताया तो कोयल की अजीब हालत हो गई। वो दीवाना वार उठा और रक्स करते हुए गाने लगा। वो झूम झूम कर गाते गाते एकदम फर्श पर गिरा। फिर पीर साहब करीब पहुंचे तो कोयल की रूह
कफ़्ज़ अंसरी से परवाज़ कर चुकी थी। लियो की बात करें, बुर्ज शम्स वालों की बात करें, मंतकल बुरूज में 5वां सितारा आप लोगों का, और अंसर आपकी सोना, धात अंसर जो है वो आपका सोना है, और आप लोग हीरा और लाल जेमस्टोन भी पहन सकते हैं, और इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। और गुलाब का फूल आप लोगों के लिए बेहतर है। शम्स स्टार्स की बात करें, जनरल रीडिंग की बात करें लियो वालों की इस वीक में, कि आप लोगों के मामला कैसे रहेंगे। ओवरऑल अगर लियो वालों के मामला को देखें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। आप अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसमें आप बड़ों को साथ लेके चल रहे हैं, बुज़ुर्गों की मशावरत से, और सोच समझ के फैसला कर रहे हैं, बेवकूफ़ी वाले काम नहीं कर रहे कि जिससे प्रॉब्लम आए। और जनरल रीडिंग में कुछ चीज़ों की नई शुरुआत हो सकती है, आपके जहन में आएगा कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ नई प्लानिंग करनी चाहिए जिससे मामलात में मदद हो। और ये जो आपकी प्लानिंग है ये आपको आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से भी ऑप्शन मिल सकती है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ वाइज भी आप अपनी हेल्थ के ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से सोचेंगे, और अपनी सेहत के लिए आप जो है वो अपने फलों का और सब्जियों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हेल्थ जो है बेहतर होएगी। और इसी तरह एजुकेशन के शोबा के जो तुलबा तालबात हैं उनको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से ऑप्शन मिल सकती है, स्टडी के लिए जा सकते हैं। ओवरऑल तो वैसे आजकल कुछ कोरोना की सिचुएशन की वजह से चीज़ें कुछ तो डिस्टर्ब हैं, मगर जो स्टार्स की पोजीशन है उसमें तो मामला चलते ही हैं, उसमें तो चीज़ें जिन्होंने जो करना है वो तो करना ही होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर कोई जिस तरह मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं, अगर घर में नीयत भी जो है वो पड़ी हो तो फिर भी जिन्होंने खाना खाना है उन्होंने भूखा तो नहीं सोना। तो ज़िंदगी के मामला तो साथ ही होते हैं, चाहे बीमारियां आ जाएं, चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे जो भी हालात हो जाए, तो जो लोग काम करना चाहते हैं उन्होंने करना ही है। जैसे भी हालात हों उन्होंने अपने घर बार और अपने मामलात को आगे लेके चलना ही होता है। ये तो इंसान है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया है कि अगर मुश्किल परेशानी या जैसे भी हालात हों इंसान खुद ही अपने रास्ते जो है वो निकाल लेता है। तो बात करते हैं आप लोगों की बिज़नेस की, कैरियर की, जॉब की, कि क्या मामला रहेंगे। हफ्ते का आगाज़ तो जो है वीकली हॉरोस्कोप में अच्छे तरीके से आएगा, अच्छे तरीके से होगा, मगर कुछ दरमियान में गैप ऐसा आएगा कि सब कुछ स्टक सा हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ ख़त्म होगा, जैसे हर चीज़ें रुक सी गई हैं, शायद कोई आपकी समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, यानी कि समय से बालातर बातें होंगी दरमियान में इसी वीक में। तो मगर घबराना क्योंकि है नहीं आपने, क्योंकि आगे जाके आपके पास और चीज़ें भी और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप लोग अक्ल व फ़हम के साथ अपनी ज़िंदगी को ऑलरेडी बेहतर कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, उनमें से किसी भी पॉइंट को पिक करके आप अपने मामलात को, कारोबारी मामलात को, जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड मामलात हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको इस सलाहियत से नवाजा है। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें, वहाँ तो आपने गुस्सा नहीं करना, इस वीक में गुस्से का इज़हार नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने तेज़ी नहीं दिखानी अपने रिलेशंस में, क्योंकि चेंजिंग हो सकती है, हालात यकसर बदल सकते हैं, चाहे रिलेशन में हो, चाहे आपकी घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे आपके जो है पेरेंट्स से रिलेटेड मामलात हों, जो कुछ भी हो आपके रिलेशन में तब्दीली हो सकती है। मगर इन सब तब्दीलियों में आपको मशवरा ये है कि अपने वालिदैन को साथ लेके चलिएगा, इस्तिखारा कर लीजिएगा, गाइडलाइन ले लीजिएगा। मशवरा यानी कि रिलेशंस में मशवरा दरकार है। मशवरा आपके मामलात को, आपके मामलात की सिचुएशन को आपके हक में कर सकता है। अगर ट्रैवलिंग की बात करें, ज़रूर करें ट्रैवलिंग, चांसेस हैं, ऑप्शन मौजूद है, और आपका किया गया इस वक्त का सफ़र आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। सफ़र वसीलाए ज़फ़र बन सकता है। मगर संडे का दिन जिस तरह आपके लिए अहम है, संडे के दिन येलो कलर का सदका देना ना भूलिएगा, और सूरह कौसर का विद 41 टाइम आप इशा के बाद पढ़ सकते हैं अपने कामों के लिए, कामों की रुकावटें दूर करने के लिए। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वजीफ़ा वही बात के वही लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर इवल आई या रूहानी मसला नहीं है, तो वजीफ़ा ज़्यादा फ़ायदा देगा उन लोगों के लिए। वैसे तो पढ़ना फ़ायदा देता ही, अल्लाह को याद करना किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अगर जो लोग पढ़ाई नहीं कर सकते वो सदक़े से भी अपने मामला ठीक कर सकते हैं। सदका हमसे पूछ के भी किया जा सकता है, हमारा नंबर चल रहा होता है, उस नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, या पर्सनल बर्थ चार्ट भी आप अपना पता करवा सकते हैं कि आप लोगों के लिए स्पेशल कौन सी ख़ास रेमेडीज़ हैं, कौन सी ख़ास पढ़ाइयाँ हैं जिनको आप करके अपने मामलात में मज़ीद तरक्कियाँ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा।
बुर्ज की बात करें, विर्गो वालों की बात करें कि विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, अंसर खाकी आप लोगों का, और मंतकल ब्रूज में आपका छठा नंबर, और आप लोगों के लिए पारा और चांदी धात जो है वो आपके लिए अहम है। और आप अगर जेमस्टोन पहनना चाहते हैं तो इस वीक का जेमस्टोन नीलम और मोती वो आप पहन सकते हैं। और विर्गो वालों के लिए इस वीक में क्या होने जा रहा है, उनकी मामलात में कहाँ अल्लाह की मदद आ रही है या कहाँ उन्होंने एहतियात बरतनी है, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं आप लोगों की जनरल रीडिंग की तरफ। जनरल रीडिंग में हम बेसिकली आप लोगों को हेल्थ और एजुकेशन भी बता देते हैं, और बाकी फिर हमारा जो पैटर्न है उस पैटर्न पे चल रहे हैं, जिसमें बिजनेस, मैरिट और ट्रैवलिंग की भी बात होती है, और एंड पे हम वजीफ़ा भी बताते हैं। और अगर हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो आप लोगों के पास काम मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, काम कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है, 2-3 काम मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, और आप उन कामों पे वर्किंग भी कर रहे हैं। और उसमें ख़ास आप के जो कामों में आपके वालिदैन का और बड़ों का ख़ास हाथ नज़र आता है, ख़ास मदद नज़र आती है, उनके बगैर ये मामला नज़र नहीं आते। मगर आपने अपनी डीलिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, दरमियानी बात नहीं रखनी। जिस किसी से भी डीलिंग करें, चाहे अपने जो है वो जो है मुलाजमीन से डीलिंग कर लें, चाहे आप अपने घर वालों से डीलिंग कर लें या किसी से भी डीलिंग कर लें, उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलें ताकि आपको अच्छे नताइज मिलें। इसी तरह सेहत के लिए अगर आपकी सेहत को देखा जाए तो आप गोश्त का इस्तेमाल कर लें इस वीक में, तो फिर आप लोगों की सेहत के मामलात में काफ़ी मदद हो सकती है। ख़ास दूध भी पी सकते हैं, दूध से भी आप लोगों की सेहत काफ़ी बेहतर हो सकती है। और जो तुलबा तालबात एजुकेशन के शोबा के साथ मुंसलिक हैं, वो भी अपनी स्टडी के ऊपर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोचें, प्लानिंग के तहत सोचें, ताकि मामलात जिस तरह के आप चाहते हैं उसी तरह की अल्लाह की मदद आए। और विर्गो वालों के बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो इस वीक का आगाज़ कुछ आपका दिल टूटेगा, कुछ जिस तरह के, क्योंकि आप नताइज चाहते हैं बहुत आला किस्म के, तो टूटे हुए दिल के साथ आप आगाज़ करेंगे, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, चाहे कैरियर में हैं। तो टूटे हुए दिल का आगाज़ जैसा भी कर लें, मगर आपको अल्लाह ताला और काम भी दे सकता है, चांसेस हो सकते हैं, तरक्की भी हो सकती है। लाजमी नहीं कि आप परेशान ही हो अपने कामों पे, अल्लाह ने ही करना होता है, अल्लाह आपको नया काम या और ऑप्शन मिल सकती है। इसलिए जब भी आप अपने कैरियर या बिज़नेस वाइज या पैसे में कोई परेशान हो, तो सोने से पहले जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो नींद का मसला बनेगा ना आपका इस वीक में, उस नींद के इशू को सॉल्व करना है। सारा कुछ तो बेसिकली अल्लाह ताला के हाथ में। इंसान तो खताओं का पुतला है, इंसान के पास है क्या, इंसान कर सकता क्या? इंसान की पैदाइश तो खुद जो है उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई, पैदा भी अल्लाह के हुक्म से हुआ है। तो हम जो है कोशिश कर सकते हैं अच्छे हालात की तरफ जाने के लिए। परेशान होकर हम अपना ही सब कुछ बिगाड़ते हैं, अपनी सेहत भी ख़राब करते हैं, अपने मामलात को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, नतीजा अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो अल्लाह ने करना है, अल्लाह 70 माओं से जो ज़्यादा प्यार करने वाला है, ज़रूर जो है वो हमारे मामलात में मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में भी आपकी चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतर होंगी, कुछ सुकून महसूस करेंगे। मगर फिर वही, इसमें भी गुस्सा नहीं करना, एहतियात से काम लेना है, रूहानी सुकून महसूस करना, अपने बच्चों में बैठना है या अपने रिलेशंस के पास साथ बैठ के अपने दिल की बात करनी है, ताकि जो आपके ऊपर जो अपने कामों का, अपने घर का बोझ आया हुआ है ना, उसको सॉल्व करें। उसको आप टाइम देंगे, सारी बात अपने मैरिड रिलेशंस को टाइम देंगे, चाहे टेलीफोनिक कॉल से, चाहे आप घर में बच्चों के पास बैठें, फैमिली के पास बैठें, और कहीं आउटिंग कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। फैमिली को वक्त देना भी आपके मामलात में मददगार साबित होता है। ये भी एक सदका है, सदका जारिया होता है। जब आप अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं या बच्चों के साथ बैठ के आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाते हैं, तो इससे भी अल्लाह ताला खुश होते हैं। कामों में मदद ज़रूर आती है। जो लोग अपने फैमिली को, अपने घर वालों को वक्त देते हैं, अपने माँ बाप को टाइम देते हैं, उससे भी अल्लाह ताला कामों में मदद करते हैं, चीज़ों में मदद करते हैं। रिलेशन में भी जो बंदा एक दूसरे का ख्याल रखता है, अल्लाह की मदद तो ज़रूर आती है। ट्रैवलिंग, आप लोग अभी ट्रैवलिंग ना कीजिएगा। ट्रैवलिंग अभी आपके हक़ में आती हुई बेहतर नहीं आ रही, मुश्किल हो सकती है। हाँ, ये आपको लगता है कि कहीं आप ट्रैवलिंग करेंगे तो पैसे की कमी या पैसा जो है वो इकट्ठा हो सकता है, मगर नहीं, वो डर खौफ है। आपको नज़र तो ज़रूर आता है एक शराब है, मगर इससे आपने एहतियात बरतनी है। बुध का दिन भी आप लोगों के लिए लकी है, और आप जुमेरात वाले दिन
सदका दे सकते हैं ब्लैक कलर की चीज़ का। कुछ स्टार्स की पोजीशन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, मगर परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और इस वीक की खास पढ़ाई आप लोगों के लिए 21 मरतबा आयतल कुर्सी है, इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके रोज़ाना जो है वो पानी पी सकते हैं, अपनी हिफाजत की नीयत से, अपने कामों की नीयत से, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके। इस वीक को भरपूर तरीके से इंजॉय करके गुजारना है, और हमारा जो पीछे वीक का एक गैप रहा है उसको भी कवर करना है इंशाल्लाह ताला। आपने पॉजिटिव रह के ही कवर कर देंगे कि हमने आपका वो जो वीकली हॉरोस्कोप नहीं बता सके, अब आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली आपको जो है वो वीकली हॉरोस्कोप हम बताएं। कुछ हम आउट ऑफ सिटी चले गए थे और आउट ऑफ सिटी करके आपके लिए हॉरोस्कोप बनाते रहे मुख्तलिफ जगहों पे, मगर अब हमने सोचा कि अपने ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपको अच्छी अच्छी जो है वो गाइडेंस दे दी जाए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें मज़ीद अच्छी वीडियोस बना के आपकी हेल्प करने की जो है वो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज मेज़ान वालों की बात करें तो मुंतकल बुरुज में आप लोगों का 7वां नंबर, और ज़ोहरा आप लोगों का स्टार, और ब्लू कलर और वाइट कलर आप लोगों को सूट करता है। और अगर आप लोग कोई जेमस्टोन पहनना चाहें तो जेमस्टोन आप लोगों के लिए इस वीक में अलमास है। वैसे आप ज़मर्द भी पहन सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। और खुशबख्ती के अदाद में 24 का अदद और 15 का अदद भी आता है। और अगर हम लोग आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें, जनरल रीडिंग में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन। अगर जनरल रीडिंग की बात करें तो इस वीक में जनरल रीडिंग में आपको अपने बुज़ुर्गों और पेरेंट्स को साथ लेके और उनकी हेल्प को साथ लेके ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि मशवरे के साथ चलना चाहिए। आउट ऑफ सिटी भी, आउट ऑफ कंट्री भी ऑप्शन है, या आप अपने शहर से दूर भी अच्छी ऑप्शन के ऊपर काम कर सकते हैं, नए विजडम के साथ काम कर सकते हैं। और हेल्थ वाइज भी आप लोग रेड कलर की गोश्त का और यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी सेहत ठीक हो सकती है। वॉक कर सकते हैं, सैर व तफरी के लिए जा सकते हैं। और जो तलबा तलबात एजुकेशन के शोबा के साथ मुंसलिक हैं उनको भी काफ़ी अपने एजुकेशन में मदद मिल सकती है, और आप नए तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। बिज़नेस, हाँ बिज़नेस की बात करें और कैरियर की बात करें तो जो लिब्रा वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी तफ्तीश का मसला है। तफ्तीश यानी कि प्रॉब्लम है, यानी कि जिस लेवल की, जिस तरीके की आप अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं, चाहे आप बिज़नेस में हो, चाहे आप अपना कोई कारोबार कर रहे हो, या छोटा सा काम करना चाह रहे हो, या बड़ा सा काम करना चाहे हो, चाहे एक के साथ 2 काम करना चाह रहे हो, जो रुकावट थी या डेडलाइन थी वो तो मौजूद है, मगर आपके पास आइडियाज़ बहुत मौजूद हैं, चीज़ें बहुत मौजूद हैं। उन चीज़ों के ऊपर आपको अभी काम मज़ीद करना पड़ेगा। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं शायद उनको छोड़ सकते हैं, या नए कामों का आगाज़ कर सकते हैं, नए कामों की शुरुआत हो सकती है। यानी कि बिज़नेस और कैरियर में कुछ भी होने वाला है। इसलिए आपने अल्लाह की मदद को लेके अपने बिज़नेस और कैरियर को इंतहाई अक्ल व फ़हम के साथ देखना है। आपका अक्ल व फ़हम के साथ किया हुआ फ़ैसला आपके फ्यूचर को, आपके घर वालों के फ्यूचर को, आपके रिज़्क़ को, आपके मामलात को आगे ले जा सकता है। इसलिए जो सूरत हाल आएगी इस वीक में वो कुछ ऐसे ही होगी, या शायद आपको लग रहा है शायद सब कुछ ख़त्म हो रहा है, या शायद आपको लग रहा है कि इतना कुछ मौजूद है, शायद आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी मौजूद है और आप इन ऑप्शन से फ़ायदा उठा के नई शुरुआत, नया आगाज़ किसी नए काम का किसी के साथ मिल के भी कर सकते हैं। मैरिड और रिलेशन लाइफ में जो आप लोगों की रिलेशन लाइफ है उसका आगाज़ तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। फैमिली को टाइम देंगे, वक़्त देंगे, थोड़ा सा मायूस हो जाएंगे। शायद फिर ये मायूसी यही है कि आपके जो पैसे के इशू हैं, जो आपके दौलत के इश्यूज़ हैं, जिससे आप अपनी फैमिली को मज़ीद अच्छा फलता फूलता देखना चाहते हैं, या शायद अपनी फैमिली को ज़्यादा जो है हेल्प करके आप खुश होते हैं या वक़्त देते हैं, वो शायद आपके नहीं मंसूबे हो रहे, या उस लेवल का आपके पास पैसा नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आप शायद मायूस हैं। मगर ये मायूसी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अल्लाह की मदद मौजूद होगी और आपको
एंड ऑफ द वीक में कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिविटी और ऐसी मुस्बत चीज़ें नज़र आएंगी जिससे आपका घरेलू सुकून काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएगा और आप रूहानी सुकून महसूस कर सकेंगे। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होंगे उनको भी जो है वो वीक के एंड में बेहतरी वाला मामला मिल सकता है। इसलिए ये वाला जो शोबा है दरमियान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एंड पे काफ़ी हद तक बेहतर है। ट्रैवलिंग, हाँ जी, आप लोग ट्रैवलिंग जो लिब्रा वाले हैं वो जो ट्रैवलिंग का प्लान बनाया हुआ है वो थोड़ा सा रोकें, अभी ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि जो चीज़ें जब तक आप कन्फ्यूजन से नहीं ना निकलेंगे फिर उस वक्त तक आप ट्रैवलिंग को ना कीजिए ताकि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। और इस वीक में आप लोगों ने सैटरडे वाले दिन सदका करना है चावलों के छोटे छोटे जो पीसीस होते हैं, जो छोटे छोटे जो टुकड़े से होते हैं, उनको आप लेके किसी वीरान जगह पे फेंक सकते हैं। और आप लोग जो इस वीक में पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप 119 मरतबा पढ़ सकते हैं। बात वही कि ये पढ़ाई उस वक्त ज़्यादा कारगर साबित होती है जब आपके ऊपर कोई इवल आई या रूहानी नजर बद या जादू का असर ना हो तो ज़्यादा फ़ायदा दे देती है। अगर हो तो उस वजह से कुछ पढ़ाइयाँ जो हैं वो फ़ायदा मंद साबित नहीं होती, या वो बंदा पढ़े जिसके ऊपर जो है जादू का मसला नहीं है या रूहानी मसला नहीं है, क्योंकि जिन जादू का मसला होने के बाद जो पढ़ा जाता है वो असर नहीं करता, उसका इलाज ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा और हमें फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। स्कॉर्पियो की बात करें, बुर्ज अकरब वालों की बात करें, आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? आपको ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए जिससे आप ज़िंदगी के मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं? अगर हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग में ऑप्शन अल्लाह ताला आपको देंगे। कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, काम मिल सकता है और 2-3 काम आप लेके चल सकते हैं। मगर इस वीक में एक ख़ास बात कि आपने दिल की बात, राज की बात नहीं करनी और छुपा के रखनी है और अपने इर्द गिर्द निगाह रखनी है। कोई हासदीन आपके गिर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आपको पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा खुद ही। और अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ वाइज आप लोग जो है अपनी सैर व तफरीह को जो है वक्त दे सकते हैं और खाने पीने में आप रेड कलर का जूसेस का, अनार के जूस का इस्तेमाल और गाजर के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीक में, और दूध का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो तलबा तलबात तालीमी रुझानात में, तालीमी मामलात में स्टडी में आगे जाना चाहते हैं, उनके तालीमी मामलात में जो गैप है उसके ऊपर बड़ों के साथ मशवरा करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करें और नई शुरुआत करें अपने पढ़ने पढ़ाने में। बिज़नेस की बात अहम तरीन इस वक्त आपके लिए मसला बना हुआ है, कैरियर और मामलात आपके लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव का शिकार होंगे। आप अपने कैरियर और बिज़नेस और पैसे के मामलात और जॉब के मामलात को लेके थोड़े से परेशान हैं आप, इसलिए इसको आपने अक़ल फ़हम के साथ तय करना है। बोझ है, ज़िम्मेदारियां हैं, कामों का बोझ है, घर का बोझ है, चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हैं, काफ़ी मामलात आप हैंडल करना चाहते हैं मगर बद असरात मौजूद हैं, नज़र बद कह सकते हैं, या स्टार्स की पोजीशन ऐसी है कि जिस तरह के मामलात आप अपने कैरियर और बिज़नेस में चाहते हैं वो नहीं हो पा रहे। इसलिए इस वीक में आपको मैं पढ़ने के लिए भी वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन और हासद पीछे हटें और आपका कैरियर और आपका बिज़नेस का शोबा बेहतर हो। मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में भी आप जो है वो कई चीज़ें देख रहे हैं कि रिलेशंस को पाया तकमील तक कैसे लेके जाना है, घरेलू मामलात को किस तरह आपने जो है वो बेहतर करना है। इसमें बेहतर मशवरा ये है कि घर वालों को साथ लेके चलें और बुज़ुर्गों के साथ मशवरे के साथ चलें, खुद से कोई फ़ैसला ना करें और ये बेहतर रहेगा आपके लिए। और जिनकी जो है निकाह वगैरह या शादी के या मंगनी के मामलात हैं वो भी पाया तकमील तक जा सकते हैं। अपने घरेलू माहौल में किसी बड़े को इन्वॉल्व करें ताकि घरेलू माहौल ठीक हो। ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। ट्रैवलिंग के लिए मशवरे के साथ ज़रूर करें और स्ट्रेट फारवर्ड हो गए। जिस किसी ने भी आपको
ट्रैवलिंग के लिए बुलाया, उससे आप तय करके बात करें कि क्या मामलात हैं, ख़ासकर अपने बिज़नेस से रिलेटेड मामलात या जॉब से रिलेटेड मामलात, उसको तय करके चलें। और इस वीक में आपने भरपूर एहतियात करनी है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम है, जॉब और करियर वाइज़ स्टार्स की पोज़ीशन थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए सदका करें, गोश्त का सदका कर सकते हैं आप मंगल वाले दिन। थोड़ा-सा गोश्त लेके उसको वीरान जगह पे भी खवाया जा सकता है, उसके लिए कुछ उसके ऊपर कुछ पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ने के लिए भी आपको बताया जा सकता है। मगर आपने जो वज़ीफ़ा करना है इस वीक में, वो वज़ीफ़ा है आयतल कुर्सी 41 टाइम, अपनी हिफाजत और अपने कामों की हिफाजत के लिए। तो जो गोश्त के ऊपर जो पढ़ना है, वो हम आप लोगों के नाम के मुताबिक, आप जो अगर हमें कमेंट कर देंगे, जिसका जो नाम होगा उसके मुताबिक उसको पढ़ाई बता देंगे कि आप जो सदका करना चाहते हैं वो ये पढ़ लें। और जो आप हमारे चैनल के ऊपर जब हमें कमेंट्स करते हैं, मेरी तो कोशिश यही होती है कि आप लोगों को उसका जो है खुद जवाब देता हूँ, और कमेंट्स का तो मैं खुद ही जवाब देता हूँ। और अगर जो आप लोग जो हमारा जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होता है, उसके ऊपर अगर आप अपने जो सवालात व जवाबात भेजते हैं, उसको भी हमारी कोशिश होती है हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जो आपके इकट्ठे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसमें तकरीबन 70 या 80 क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, उनका मैं जो है एक प्रोग्राम होता है मेरा आयशा के साथ, दिल की बात दाऊद जी के साथ, उसमें आप लोगों के सवाल व जवाब जो है उनके लिए जो पढ़ना पढ़ाना होता है वो मैं भेज देता होता हूँ। तो कोशिश करता हूँ, कई लोगों की जो है पर्सनल जो है इंक्वायरीज होती हैं, नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो नहीं भेजते, तो वो हमें जो है वो हमारे नंबर के ऊपर जो है वो भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते होते हैं। तो मैं वहाँ से वो लेके वो सारा कुछ तो उनको जो भी कोशिश होती है बता देता हूँ। मगर जो डिटेल में चाहिए होता है उसके लिए फिर वो जो है वो अपॉइंटमेंट होती है, वो आयशा के पास ही नंबर होता है, आयशा ही उसको डील कर रही होती है, तो वो भी हम कर देते होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप इस वीक में एहतियात से जो है अपने मामलात को गुजारिएगा, ख़ासकर बिज़नेस और कैरियर वाइज। और बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला ने आपको वैसे भी ड्रामाई ताकतों से नवाजा है, आप आने वाले वक्त को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, पता चल जाता है। छठी हिस्स जो है आप लोगों की काफ़ी काम करती है, फनकाराना सलाहियतों के मालिक होते हैं, और अल्लाह की मदद भी आ जाती है। अंसर पानी है आप लोगों का, और कहीं जब भी कभी मुश्किल और परेशानी हो, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद भी करते हैं। और अल्लाह ताला मज़ीद आपके लिए तरक्कियाँ, आसानियाँ और चीज़ें बेहतर करें। अपना ख्याल रखिएगा। शहीद मोहब्बत हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मैं कई साल तक हजूर गरीब नवाज शेख मुइनुद्दीन हसन संजरी की खिदमत में रहा, लेकिन ये कभी ना देखा कि आपने दोस्त का भेद ज़ाहिर किया हो या कभी उसका तज़किरा तक किया हो, और ना उन अनवार को ज़र्रा भर भी ज़ाहिर किया जो उन पर नाज़िल होते। एक रोज़ ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फ़कीर की तरफ मुखातब होकर फरमाया, ए फरीद, कामल हाल वो शख्स हैं जो दोस्त की हदायत में मुकाशफा नहीं करते ताकि दूसरे उससे वाकफ ना हो जाएं। आपने फरमाया, ए फरीद, तूने देखा कि अगर मंसूर हिलाज कामल होता तो हरगिज दोस्त का भेद जाहिर ना करता, लेकिन क्योंकि कामल नहीं था इसलिए दोस्त के असरार का जरा भर उसने जाहिर कर दिया और जान से मारा गया। आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया कि जब ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आलमे सकर यानी वजद की कैफियत में होते तो सवाए एक बात के और कुछ ना फरमाते, वो ये थी, इस आशिक पर हजार अफसोस है जो अल्लाह ताला की दोस्ती का दम मारे, और जो इसरारे इलाही उस पर नाजुल हो उनको फ़ौरन दूसरों के सामने ज़ाहिर कर दे। वेजिटेरियंस की बात करें और बुर्ज कौस की बात करें, सितारा मुश्तकी और मंतकल बुरूज में आप लोगों का 9वां नंबर, और नीलम जेमस्टोन पहन सकते हैं आप लोग। मंगल का दिन आप लोगों के लिए फेवरेट और लकी होता है। मगर हम चलते हैं आप लोगों की जनरल रीडिंग की तरफ कि इस वीक में आपकी जनरल रीडिंग में जो हम 3 चीज़ें जनरल रीडिंग में बता रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन।
ये कैसी रहेगी। उसके बाद हमारा वही तरीका कार, बिजनेस की बात करेंगे, मैरिड की बात करेंगे, ट्रैवलिंग की बात करेंगे, सदक़े की बात करेंगे और अमल की बात करेंगे। तो जनरल रीडिंग में कामों में मसरूफ़ नज़र आएंगे, काम तो आ रहे हैं, काम आपके जो है वो मौजूद भी हैं, मगर जनरल रीडिंग की बात में आपकी तबीयत में गुस्सा आएगा, शायद किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए एहतियात करनी है और एहतियात का और सब्र का दामन नहीं छोड़ना। ये क्यों गुस्सा आएगा आपको, क्यों आपके मामला थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, बेसिकली बदअसरात हैं, दुश्मन हैं आप लोगों के मामला को जो ख़राब कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही हैं, उनको आपने खुद ही देख लेना है। क्योंकि जो आप लोगों की टांगें खींच रहे हैं लोग, उनको पकड़ना है, क्योंकि आप तो सही काम कर रहे हैं, कामों में मसरूफ़ हैं, चाहते हैं जिस तरह के नताइज आप हासिल करना चाहें वो मिले, मगर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उसको आप देख लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा है, मुश्तरी स्टार है, आप वक़्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक सही फ़ैसले कर ही लेते हैं और अल्लाह भी आपको मदद करते हैं और आपकी मदद से आपके मामलात बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, हेल्थ वाइज भी। इसीलिए आप जो वॉक और जो एक्सरसाइज कर रहे थे उससे थोड़ा सा पीछे हटे हैं, चाहे आप मसरूफियत की वजह से, उसको भी देखिएगा। और तुलबा और तालिबात भी अपनी तालीम को ज़रूर देखें कि तालीमी मामलात बेहतर होंगे तो माँ बाप खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे, आपका कैरियर सही तरीके से चलेगा, एजुकेशन का शोबा भी आपका इस वक्त ठीक होने वाला है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं बिजनेस की बात। बिजनेस में आपको एक सॉलिड पैगाम आएगा और कैरियर में भी जिन लोगों ने सीवी जमा करवाई हुई है, जॉब के लिए किसी को कहा हुआ है या जिन लोगों ने कोई अपना एग्रीमेंट आगे भेजा हुआ है, उनको सॉलिड पैगाम आ सकता है अपने कामों के हवाले से। और ये जो सॉलिड पैगाम है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या आपके इर्द गिर्द कुछ दूर से आपको वाज़े पैगाम आएगा कामों के हवाले से कि काम देख लें, जॉब नहीं मिल सकती है या आपका कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। और माली पोजीशन में आप मुस्तहकम बैठे हुए नज़र आते हैं, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी। मैरिड या रिलेशन लाइफ में आपने अपने बड़ों को साथ लेके चलना है। चीज़ें आपसे इस वक्त खुद हैंडल नहीं हो रही, घर के मामलात नहीं हैंडल हो रहे प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से हैंडल होना चाहिए, या रिलेशन के मामलात उस तरीके से हैंडल नहीं हो रहे जिस तरीके से होना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स को या किसी भी बड़े को अपने मामलात में मशवरे के तौर पे शामिल करेंगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। वैसे भी बड़ों की बरकत होती है, जो लोग अपने बड़ों को साथ लेके चलते हैं, जो लोग बड़ों का साथ करते हैं, मदद आती है। बाज़ औक़ात जहाँ कहीं खराबियाँ होती हैं, वो लाज़मी नहीं कि वहीं पे ही खराबियाँ हों, दुश्मन भी होते हैं, उनको नज़रअंदाज जो है वो मत कीजिए। ये हासद, अब ये दुश्मन अपने ही तो होते हैं। जिस तरह मैं कई जगहों पे बात करता हूँ कि सूरह फलक और सूरह नास कुफ़ार के लिए थोड़ी उतारी गई थी, वो तो मुसलमानों के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए तो उतारी गई थी कि ये मुसलमान ही तो एक दूसरे से हसद करेंगे। नज़र कुफ़ार और दुश्मनों की थोड़ी लगती है, नज़र तो अपनों की भी लगती है। तो ये इर्द गिर्द के मामलात में जो है वो देखिए, नज़र आ जाएगा, सारा कुछ पता चल जाएगा। ट्रैवलिंग अच्छा खासा ऑप्शन मौजूद है, कर सकते हैं, नई शुरुआत भी हो सकती है, मगर वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको ट्रैवलिंग में जो आप चाहते हैं। आप लोगों के लिए सदका है जी इस वीक में मिक्स दालों का, क्योंकि असरात हैं स्टार्स पे, उसको ठीक करने के लिए मिक्स दालों का सदका है। और पढ़ाई जो है आप लोगों के इस वीक में आ रही है, उसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। सूरह मुज़म्मल की जो है वकीला तक पढ़ सकते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम बिल्लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वामु क़ीला। यहाँ तक आप पढ़ लें, पढ़ाई कर लें, 7 दफ़ा पढ़ लें अपने कामों के लिए। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके कामों में मददगार साबित हों, चीज़ें ठीक हों। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, इंसान कोशिश कर सकता है, भरपूर तरीके से कोशिश कर सकता है। अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। जिस तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के पास एक बंदा आया, उसने पूछा कि ये बताएं कि या अली, कि मुक़द्दर जो है वो उसके ऊपर मेरा कितना इख्तियार है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि अपनी एक टांग उठाओ। उसने एक टांग उठा ली, तो फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाने लगे अपनी दूसरी टांग उठाओ। जब वो दूसरी टांग उठाने लगा तो वो कहता नहीं नहीं, मैं नहीं उठा सकता। तो बंदे का इतना ही इख्तियार होता है, बाकी इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने हाथ में लिए हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी चीज़ें ठीक कर दें, हमारे मामलात में बेहतरी कर दें, घर में सुकून दे दें,
रिश्तेदारों में जो है वो ताल्लुकात बहाल हो जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएं, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। दुआ से तकदीरें बदलती हैं और निगाहें मर्द मोमिन से तो ज़रूर बदलती हैं। अल्लाह ताला जो है वो हमारा हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें कि कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, चीज़ें किस तरफ जाएंगी। जनरल रीडिंग की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की। जनरल रीडिंग में वही 3 चीज़ें, हेल्थ और एजुकेशन को भी हम साथ शामिल करेंगे, मगर बिजनेस, मैरिड और ट्रैवलिंग भी हम साथ बताएंगे, और वही कि सदका क्या करना है और वजीफ़ा क्या करना है। तो जनरल रीडिंग में की अगर बात करें तो जनाब कैप्रिकॉर्न वालों की जनरल रीडिंग में कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आपके कोई कागजी मामला जो आप के रुके हुए हैं, चाहे वो मैरिड से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब और कैरियर से रिलेटेड हो, तो कुछ आपको लिख पढ़ के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। पैगाम आएगा, सॉलिड पैगाम आएगा कि आएँ, बैठ के बात करें। किसी तरह की भी कोई पब्लिक डीलिंग हो सकती है। और अगर हम आप लोगों की हेल्थ की भी बात करें जनरल रीडिंग में, तो हेल्थ में वॉक करना बेहतर है, और वॉक करें। और घुड़सवारी का जो लोग कर सकते हैं वो घुड़सवारी भी कर सकते हैं। और अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए आप लोग जूसेस का इस्तेमाल और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ़िश का इस्तेमाल बेहतर आ रहा है, गोश्त का, प्रोटीन लें। और एजुकेशन के मामलात बेहतर तरीके से आगे जाएंगे। एजुकेशन में काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी आप लोगों को, और जो तलबा तालिबात तलीमी शुबा हिजात के साथ मुंसलिक हैं उनके भी तलीमी मामलात बेहतर हो जाएंगे। और कैप्रिकॉर्न वालों के अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए चीज़ें इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं, काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। और जो आपके दिमाग और दिल में खुफिया बातें चल रही हैं बिज़नेस को लेके, और उनको आप मज़ीद तक़वियत देंगे, मशवरे के साथ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आप अपनी काउंसलिंग भी करेंगे, बड़ों से मशवरा भी कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, और आपका बिज़नेस काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाता नज़र आता है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ओवरऑल वैसे ये वीक काफ़ी बेहतरी वाला वीक है। कई काम कर सकते हैं, कामों का आगाज़ कर सकते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। जो पुरानी पोजीशन ख़राबी की तरफ थी वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। मैरिड और रिलेशंस में भी आपकी चीज़ें बहुत स्पीड के साथ आगे की तरफ जा रही हैं। जिनके रिश्ते रुके हुए थे या जिनके मामलात ख़राब थे, उनके मामलात काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आते हैं। रिलेशन में बेहतरी नज़र आती है। सुकून, रूहानी सुकून, अपने सॉर्ट आउट से मिलते वक्त रूहानी सुकून फील करेंगे। फैमिली को टाइम देंगे, फैमिली के साथ भी रूहानी सुकून, और जिनके रवाबत रुके हुए थे उनकी टेलीफोनिक कॉल्स का भी इजाफा हो जाएगा। चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है, मगर जो भी ट्रैवलिंग करें वो खुफिया, यानी कि किसी को बताए बगैर करें, ताकि जो नताइज आप लेना चाहते हैं वो ले लें। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वीक में काफ़ी बेहतरी है। चीज़ों का बेहतर तरीके के साथ आप आगाज़ कर सकते हैं। नीलम जेमस्टोन पहन सकते हैं, और सदका आप लोगों के लिए गोश्त का आ रहा है, गोश्त का सदका कर सकते हैं। और सैटरडे वाले दिन आप लोग एक ख़ास अमल आप लोगों को बता देता हूँ, अपने कामों के लिए ज़रूर कीजिएगा। सूरह खलास 313 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा। और मैं फिर वही बात कि जिन लोगों के ऊपर रूहानी प्रॉब्लम हो, जादू का असर हो, उनको सबसे पहले अपना इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब असर होता है तो तब पढ़ाइयाँ जो है वो फ़ायदा नहीं देती। सूरह इखलास का पढ़ना आपके कामों में मामूल साबित हो सकता है। और इस पूरे वीक में अगर आप पढ़ना चाहें तो 10 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इशा के बाद अपने कामों के लिए पढ़ के, बल्कि कामों की रुकावटें दूर करने की नीयत से पढ़िएगा। वैसे तो ओवरऑल आप इस वीक में स्टार्स के मुताबिक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मज़ीद तरक्कियाँ दे, मज़ीद कामयाबियाँ दे, और आपको मज़ीद आगे जो है तरक्कियों के साथ ज़िंदगी का सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। एक्वेरियस की बात करें और बुर्ज दिलो वालों की बात करें, 11वां मंतकल बुरूज में आपका जो है वो
स्टार्स है नीलम जेमस्टोन पहन सकते हैं। सैटरडे वाला दिन अहम है, 4 नंबर लकी है। और अगर आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग में 3 शोबे वही हेल्थ और एजुकेशन का भी आता है। जनरल रीडिंग में आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके के साथ मामलात को कंट्रोल करके आगे जाना चाहते हैं, मगर ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होने की वजह से आपको कोई ना कोई ऐसी अल्लाह ताला कुदरतन हमेशा हेल्प करते हैं और आपको ऑप्शन देंगे। अगर आप उस ऑप्शन पे काम करेंगे तो अल्लाह की काफ़ी मदद आप लोगों को मिल सकती है। सेहत वाइज अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, कामों में इतना मगन ना हो कि अपनी सेहत को भूल जाएं। और जो तलबा तालिबात एजुकेशन के शोबा के साथ मुंसलिक हैं वो अपनी एजुकेशन को साथ साथ ही सॉर्ट करें और आज का काम कल पर मत डालिएगा। और साथ साथ अगर आप अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी और चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। और कई लोग जो एजुकेशन के शोबा में आउट ऑफ कंट्री जाएंगे या आउट ऑफ सिटी भी जाएंगे, उनको भी अल्लाह की मदद आएगी। बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें तो बुर्ज दिलों वालों के लिए अल्लाह ताला ऑप्शन देंगे, काम देंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ सॉलिड काम आएगा। मगर बुर्ज दिलों वालों के जो स्टार्स की पोजीशन है वो कुछ थोड़ी सी बिज़नेस और कैरियर में आपका स्टार का जो घर हाउस है वो थोड़ा सा वीक है, इसलिए नींद का इशू आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती हैं। जो आप काम या बिज़नेस करना चाहते हैं वो रुक सकता है। कुछ जादू का असर भी नज़र आता है, रूहानी असर, रूहानी प्रॉब्लम नज़र आती है। इसलिए मैं आपको इससे मुतल्लिका ही पढ़ाई बताऊंगा ताकि आपके मामला ठीक हों। मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में भी कबाहतें मौजूद हैं, दुश्मन मौजूद है। मेरे ख्याल में क्यूरियस वालों के लिए अगर हम इस वीक की थोड़ी सी ओवरऑल बात करें तो हसद की वजह से आपके मामला बिगाड़े गए हैं। क्योंकि जिस तरह अगर मेरे पास जो रीडिंग आई है मैरिड और रिलेशन में, वहाँ भी आपका दुश्मन मौजूद है, वहाँ भी आपको स्ट्रेट फारवर्ड होना पड़ेगा। स्ट्रेट फारवर्ड होंगे तो फिर चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आती हैं और जिससे आपकी नींद का इशू इस वीक में शायद आपका नींद का, डिस्टर्बेंस का और सोचों का मामला चले। इसको ठीक करते हैं इंशाअल्लाह ताला पढ़ाइयों के ज़रिए या सदक़ात के ज़रिए। ट्रैवलिंग भी आपके पास ऑप्शन है, कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा गैप, इंतज़ार, ऑप्शन जो आई हुई है उसके ऊपर गौर व खौस करके आपने ट्रैवलिंग करनी है। बुर्ज दिलों वाले वैसे तो हर किसी के साथ अच्छा ही सलूक करते हैं, इनका मोटो भी यही रहा है, जियो और जीने दो। और ये कहते हैं हम सुकून के साथ रह रहे हैं तो हमें ना तंग किया जाए। मगर आप लोगों की शराफत वाली ज़िंदगी को देख के लोग आपको, आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, आपको तंग करने लग जाते हैं। आपकी तो ख्वाहिश बिल्कुल नहीं होती कि किसी को तंग किया जाए, किसी को जो है वो, क्योंकि आपकी तो वो जो स्टार साइन है वो भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाना ही। आप तो परेशानी में भी यही कहते हैं कि चलो जी कर भला सौ भला, तो लोगों का भला सोचते हैं। ये तो अब मफाकाते अमल है। लोग इस वक्त आपके थोड़ा सा स्टार्स में मुखालफ हुए हैं, जेलस हुए हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है कुदरतन। जो आपके मंसूबे हैं, जो आपकी चीज़ें हैं जिनको आप आगे बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं वो उस लेवल से नहीं हो रही। इसके लिए ये है कि सैटरडे वाले दिन आप रेड कलर की किसी भी चीज़ का सदका करें, पानी पिला सकते हैं किसी को, पानी की जो रेड कलर की कोई शरबत है वो भी सदका किया जा सकता है, गोश्त का भी किया जा सकता है। और इस पूरे वीक में आपने सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून का विर्द करना है और ये आपने 31 टाइम रोज़ाना इशा के बाद करना है और अपने कामों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। खुश रहना है, परेशान नहीं रहना। मुसीबतें, मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सितारे क्या जो है वो मुकम्मल उस तरफ बात लेके जा सकते हैं, करने वाली ज़ात तो वही अल्लाह की है। अगर सितारे मुश्किल में है या परेशानी में है तो इसका क्या मतलब है कि हम जो है अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीदें और अल्लाह ताला के ऊपर जो हमारा ध्यान है उसको छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होता। अगर हमारा यकीन और ईमान अल्लाह के ऊपर पुख्ता है तो ये सितारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर क्या मजाल है कि जिसका हाथ अल्लाह ताला ने पकड़ लिया हो या जिसके ऊपर अल्लाह ताला का मदद हो, अल्लाह ताला का करम हो, सितारे क्या करेंगे? इनमें क्या ताकत है, क्या क़ुव्वत है? मगर शर्त है अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से तल्लक, अल्लाह वालों से मोहब्बत और अपना ध्यान इस तरीके का होना चाहिए कि जो मुश्किलें और परेशानियां नीचे रह जाएं और आपका अल्लाह के साथ तल्लक ऊपर हो, जिससे अल्लाह आपकी मदद करे और कामों में भी मदद हो। अल्लाह आपका हामी नासिर।
ایک دفعہ بابا فرید رحمتullah علیہ ایک پہاڑ پر پہنچے. وہاں غائب سے آواز آئی, اے محمد مسعود محب بننا چاہتا ہے یا محبوب؟ عرض کیا, یا الہی محب کا مرتبہ زیادہ ہے یا محبوب کا؟ حکم ہوا محب کا. محبوب جب محب میں فنا پاتا ہے تو باقی محبوب ہی رہ جاتا ہے. یہ درجہ کمال ہے. اس واسطے میں آپ کی توفیق سے اسی درجہ میں آپ کے صراط مستقیم پر قدم رکھنا چاہتا ہوں. حکم ہوا, اس راستہ میں امتحانات شدید ہوتے ہیں اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے, کچھ ڈر اور بھوک سے, اور کچھ مالوں اور جانوروں اور پھلوں کی کمی سے, اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. بابا فرید رحمتullah علیہ نے عرض کی کہ بشر الصابرین و زاہدین کی خوشخبری بھی آپ ہی عطا کریں گے, کیونکہ آپ کی توفیق سے صراط مستقیم میں قدم رکھ دیا ہے. اس وقت اس پتھر کو جس پر آپ رحمتullah علیہ کھڑے تھے حکم ہوا کہ اس کا چمڑا گوشت سے اتار لو. چنانچہ اس پتھر کی سل نے آگے پیچھے سے چمٹ کر تمام گوشت سے پوست اتار لیا. پھر ہاتف سے آواز آئی, اے محمد مسعود تم کو کہا ہے کہ اس راستہ میں آزمائشیں بہت ہیں, اب بھی ہٹ جاؤ. عرض کیا, اب تو آپ کی توفیق سے اندھوں کی مثل تھوڑا سا سوراخ ہونے پر لاٹھی کے وسیلہ کے بغیر رواں ہو گیا اور آگے ہی چلوں گا. پھر حکم ہوا, اس کے گوشت میں کنکر مارو. چنانچہ آپ رحمتullah علیہ اس پر بھی صبر و شکر رہے. پھر جانوروں کو حکم ہوا کہ اس کے بدن کا گوشت نوچ لو. چنانچہ انہوں نے سب گوشت نوچ لیا. اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے حکم سے مطمئن رہے, اور اس پر کمال رحمت اور عنایت سے فردیت کے مقام اور نودنا نام جو مشہور ہیں عطا ہونے کی خوشخبری حاصل ہوئی. اور بطور عجز کہ اس شعر کو بابا جی رحمتullah علیہ نے اپنی آپیتی میں بیان کیا ہے, اور بطور عجز کے اس شعر کو بابا جی رحمتullah علیہ نے اپنی آپیتی میں بیان کیا ہے. فریدا تن سکا پنجر تھیا تلیاں کھونڈی کاغ, اجے سن رب نہ بوڑیو ویکھ بندے کے بھاگ. اے فریدا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, ہاتھ پاؤں کے تلووں سے کوا ماس نوچ رہا ہے. اتنی جد و جہد اور دنیاوی لذتوں کی دوری کے باوجود بھی اگر رب ساتھ نہ دے تو پھر بندے کی قسمت ہی قصوروار ٹھہرے گی. پائسس کی بات کریں اور برج حوت والوں کی بات کریں کہ برج حوت والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا ہونے والا ہے, آپ کو کیا کام کرنے چاہیے, کن چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے, اور کون سے اقدامات کر کے آپ ترقی کی منازل کو طے کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی اگر ہم جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو جنرل ریڈنگ میں آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بھی ہم شامل کریں گے. جنرل ریڈنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص آپشن دینی ہے, کام دینا ہے, کوئی بھی مل سکتا ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور یہ 2-3 کام مل سکتے ہیں آپ کو, جس کے ایک کام کے اوپر تو آپ مضبوطی سے چل رہے ہیں, کوئی بھی شعبہ ہے. مگر آپ لوگ گھبرائیں نہیں, کیونکہ کنفیوژنز رہیں گی, آپ کو ڈر رہے گا, خوف رہے گا اس پورے ویک میں کہ کیسے کام ہوں گے, چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی. یہ والا معاملہ اس کو دیکھنا ہے آپ نے. اور اسی طرح صحت کے معاملے میں بھی آپ لوگوں نے اپنا واک کا خیال کرنا ہے, اور گھر سے باہر نکلنا ہے, اچھی آب و ہوا میں جانا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے. اور طلباء طالبات نے اپنے فوکس کو ٹھیک کرنا ہے, ایجوکیشن کے اوپر, تعلیمی معاملات کے اوپر اپنا فوکس, اپنی توجہ, کہ آپ کی توجہ آپ کی تعلیمی معاملات میں مددگار ثابت. بزنس کی بات کریں اور کیریئر کی بات کریں تو تھوڑا سا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ کا, چیزیں آپ کی جو ہیں وہ جو ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ کسی کے ساتھ اپنے معاملات کی شیئرنگ کریں گے, پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, مگر نتائج دیر سے ہی ملیں گے, ابھی نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آتے, اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے. اور اگر میرڈ اور ریلیشن کی بات کریں تو میرڈ اور ریلیشن میں جن لوگوں کے رشتے یا ریلیشن میں پرابلم تھی وہ بہتری کی طرف جائیں گے, مگر اس میں ایک کام ضرور کرنا ہے, اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے. اپنے جتنا اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے, سیدھی بات کریں گے, اتنے ہی نتائج ملیں گے آپ کو آپ کے فائدے میں. اور
آپ لوگوں کا مستقل اور مصمم ارادہ آپ کو آپ کے ریلیشنز میں کامیاب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹریولنگ آپ ضرور کیجئے گا، ٹریولنگ کی آپشن موجود ہے، اللہ تعالیٰ ٹریولنگ میں بھی آپ کو فائدہ دیں گے، اور ٹریولنگ کا کرنا آپ کی پوزیشن کو مزید مستحکم کر سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں جو آپ کی ٹریولنگ ہے، آئی تھنک یہ کاروباری معاملات سے متعلقہ ہو سکتی ہے، جاب سے متعلقہ ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ کے سٹارز کی پوزیشن پیچھے تھوڑی سی خراب رہی تھی، مگر اب کافی حد تک بہتر ہے، مگر اس طرح کا نہیں، ابھی آپ کا سفر آگے مزید بہتری کی طرف جائے گا، چیزیں مزید اللہ بہتر کریں گے، اس کو مزید آگے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ آپ لوگ جو ہے جمعرات والے دن کسی یلو کلر کی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں، یلو کلر کی چیز میں زردہ پکایا جا سکتا ہے، یا یلو کلر کے لڈو ہوتے ہیں وہ کسی فقیر کو دیے جا سکتے ہیں، اور اس پورے ویک میں لا حول ولا قوت الا باللہ 121 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں عشاء کے بعد، اور اپنے لیے اپنے کاموں کے لیے دعا کریں، اور کوشش کریں آپ لوگ ہمیں جو ہے اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جو لوگ اپنے لیے کوئی خاص اسپیشل ہم سے جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ لاہور میں آفس ہے، لاہور میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی ہمارا آفس ہے، وہاں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، جب کبھی ہم اسلام آباد آئیں تو وہاں بھی ٹائم لیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کوشش کریے کہ جو بھی آپ کا کوئی کوئریز ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ آپ اگر ہمیں کمنٹس میں بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارا ایک نمبر چل رہا ہے اس میں بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارا ایک ویکلی یا 15 دن بعد یا مہینے بعد جب آپ کے 100 سے ابو کویسچن ہوتے ہیں، ان کا ہم نے ایک پروگرام جو عائشہ کے ساتھ کرتے ہیں، جو عائشہ کے ساتھ جو ہے کہ آپ کی جو سوالات و جوابات کا سیشن ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ اپنے مختصراً سوال جو پوچھتے ہیں ان کا جواب دے دیا جائے، اور ویسے پرسنل اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس جو نمبر چل رہا ہے وہ عائشہ کے پاس ہی ہوتا ہے، وہی اس کو سارا ڈیل کر رہی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ پچھلی دفعہ ہمارا ویکلی ہوراسکوپ نہیں ہو سکا، جو بیسیکلی وجہ یہ بنی کہ کچھ نجی مختلف چینلز کے اوپر پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، ان کی مصروفیت کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ پروگرام رہ جاتا ہے۔ ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو گیپ دیں، مگر کیونکہ وہ بھی مجبوری ہوتی ہے، مختلف چینل پہ جانا بھی مجبوری ہوتی ہے، اس لیے ٹائم کی قلت کی وجہ سے بعض اوقات مسنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ سے دور رہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے رابطے میں رہیں، آپ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تعلق بنایا ہے اس تعلق کو مزید مضبوط کریں، اور یہ تعلق جو ہے یہ ایک تو جو ہے وہ روح کا تعلق بھی ہوتا ہے، روحانی تعلق بھی ہوتا ہے، اس تعلق میں کمی نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو اسی طرح قائم دائم رکھیں، اور ہمارے مسئلوں کو، ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، انسان خطاؤں کا، غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی ہم پیشگی معذرت آپ سے کرتے ہیں۔ ستارے اگر کہیں اپنی ڈائریکشن چینج کر دیں اور آپ کی پوزیشن سٹارز کے مطابق نہ ہو تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اس بیماری کے حالات میں جو پوری دنیا کے اوپر چل رہی ہے ضرور احتیاط کیجیے گا، احتیاط کرنا ہی اہم ہے۔ SOPs کا خیال کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آئندہ بھی پھر ملاقات ہو۔